तो वापस रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ऑल ऑफ यू ध्यान दीजिएगा, लुक एट मी ऑल ऑफ यू, लुक एट मी। यस मैम। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नाउ maximum students are here. Please don't talk again. And we were talking about the provision, constitutional provision for the marginalized people, and we have discussed about the fundamental right, that is the right to equality and protective discrimination. The topic was done untouchability, right against the exploitation, and special provision Aditya Raj, Harshvardhan, write down in your copy. I want you to write down in your copy the constitutional provision, the constitutional provision for the marginalized people. What are the different constitutional provision for the marginalized people? Any one of you will stand and say, but first you write down. Only topic you are going to write, don't explain it. Special constitutional provisions are given for the marginalized people under the fundamental rights, that is the right to equality, in which protective discrimination is there, untouchability has to be removed, then right against exploitation is there, special provision for minorities. Am I right? Yes ma'am. Yes, ma'am. Say yes or no? Yes ma'am. Now can you tell me what is protective discrimination? Harshvardhan. मैम क्या मैम फिर से रिपीट? What you yesterday I explained about the protective discrimination. What do you mean by protective discrimination? The protective discrimination means that the state can make a special provision to protect the interest of socially and economically backward classes. It can make a special provision to protect the interest of the socially and economically backward classes. Isn't it? And the government can also implement. मैम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे। यस मैम थोड़ा मैम क्लियर नहीं आ रही है आवाज कट कर आ रहा है सर वॉइस। आपकी आवाज गूंज रही है ना, तो मैम समझ में नहीं आ रहा मैम क्या बोल रहे हैं। आज बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए हम स्कूल वाले से नहीं करते। मैम बहुत लो और कट कट के वॉइस आ रहा है। यस मैम। यस मैम। वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, आवाज कट के आ रहा हो, तुम्हारे साइड का प्रॉब्लम है। अच्छा ओके, सर सभी के आ रहे हैं। मैम आपका टावर रेड दिखा सर रहा है। सबका आवाज बहुत ही गूंज रहा है। सर मैम आपका आवाज क्लास में बहुत गूंज रहा है, उसकी वजह से आवाज बहुत ज्यादा
This chapter is going harmonic कर दीजिए, ये अगर हम लोग को समझे रिवीजन में तो करवाना, जिससे कराना वो अनम्यूट करेगा अपने आप, वो अपने आप कर देता है, बोलने से। हाँ आप बोलिए ना, वो अनम्यूट करेगा। Okay. When I will tell you any one or two children to unmute yourself, then you are going to unmute yourself so that you will not face any disturbance in this class actually. And some connectivity problem is there, so we are facing a bit Okay, problem. ma'am. Again, you just unmute yourself. The things which we have discussed yesterday was under the fundamental right and the special provision given by the Constitution of India. That is already we have discussed, and the protective discrimination is done by the state for their people, and the special things they have to do for those people who are economically backward and they are socially boycotted from the society. So these things has to be done by the government of state government has to done, and touchability is also one of the way to remove by the government, by the people and everyone, isn't it? Now, and we have discussed a few questions related to them, that if particular thing is going on, in what way you are going to say that किस प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन उनके साथ में हो रहा है, ये भी हमने डिस्कस किया था, वो आपको खुद से समझना होगा। तो अंडर सेंट्रल आप लोग फंडामेंटल राइट्स को नहीं समझोगे, अगर एजुकेशन नहीं मिल रहा है तो उसको आप उसमें बताओगे कि कौन सा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के उसके सेक्टर्स बन रहे हैं। We are discussing about the directive principle of state policy. हर state को, why we have a federal type of government, all of you know, if any states are facing, are having different culture, religion, languages, so as their demand, their needs, problems, हर तरह के problems होते हैं। Yesterday I have discussed about the Kerala. The Kerala people, their literacy rate is very high in Kerala. And most of the people are employed because they don't feel any hesitation to move around any country. वे ना केवल अपने ही इंडिया के ही किसी कोने में चले जाते हैं, बल्कि विदेश में भी चले जाते हैं जॉब करने के लिए, है ना। और लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, फीमेल्स पॉपुलेशन इज आल्सो वेरी मोर, एंड जहां हमने देखा कि फीमेल पॉपुलेशन भी ज्यादा है और लिटरेसी रेट भी ज्यादा है, तो प्रॉब्लम ऐसे ही हमारे सॉल्व हो जाता है ना। अब हम बात करेंगे स्टेट पॉलिसीज का क्या है, व्हाट डू मीन बाय द स्टेट पॉलिसी। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ वेरी not enforceable by a law, but they do lay down important fundamentals in the government of the country. फोर्स नहीं कर सकता है कोई भी कि आपको यही बनाना है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी फोर्स नहीं करेंगे कि हम आपको यही कानून बनाना है अपने स्टेट में, ऐसा नहीं। मैम फ्रीली जो करना है वो करें। फ्रीडम। इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्री को सही रूप से गवर्न करने के लिए हमारे स्टेट पॉलिसी पीपल के बिहाफ में बननी चाहिए, लोगों के को ध्यान में रखते बननी चाहिए, ठीक है। They direct the state to apply this principle while making the law to secure a social order for the promotion of the welfare of the people. All very well know, it should be for the welfare of the people. Let's see. They aim to minimize the inequalities in income and eliminate the inequalities of the status along the providing the facilities and opportunities. So the directive principle ensured that the material resources of the country are utilized for the common good. Means if देखना होगा, सरकार को खुद देखना होगा, the government has to look after that how what sort of resources are present here, कौन से रिसोर्सेज यहाँ पर है और वो किस प्रकार से लोगों के लिए बेनिफिट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यू टेक, आई टेल यू वन थिंग, इफ यू गो फॉर द प्रोजेक्ट मैटर, यू आई एम गिविंग यू द होल इंडिया, कैन यू गिव मी एनी पर्टिकुलर स्टेट नियर बाय बिहार। आप अपने बिहार के कोई भी पड़ोसी राज्य का नाम ले लो और आप, क्योंकि आप अगर अपने स्टेट का बताओ, मैं बता रही हूँ, हाँ वेरी गुड, झारखंड के आप आ रहे हो, मैं बता रही हूँ कि अगर आप पर्टिकुलर अपने स्टेट का बात करोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। आप किसी पड़ोसी स्टेट के बारे में बताइए कि वहां पर किस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट ने लोगों के लिए काम किया, गवर्नमेंट ने काम किया लोगों के लिए, और उसके रिसोर्सेज को भी बहुत अच्छे से यूज किया है। मैम लाइक यूपी, मैम यूपी, मैम बंगाल, यूपी, आदित्यनाथ योगी मैम जो थे, केरला, केरला, राजस्थान,
you are going to only take the Jharkhand. I'm giving you only one state. That go to Jharkhand and take out the details that what the government of Jharkhand are doing for their people. Understood? At what extent? What are the policies are made for the people of Jharkhand? Yes, ma'am. ये हमारा होगा, ये प्रोजेक्ट मेथड है, ये एग्जाम में नहीं आ रहा, बट ये वर्कआउट करने वाली बात हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज। हाउ यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द मार्जिनलाइज, कैसे आप प्रोटेक्ट करोगे? मैम इसके उनको लिए है रिजर्वेशन। मैम नॉलेज देके मैम उनके बारे में सबसे पहले इसके लिए है रिजर्वेशन, एन अनएंडिंग इशू और एन इक्वल अपॉर्चुनिटी इशू। इसको बोल दिया गया कि रिजर्वेशन को एक अनइक्वल ये है, ये पॉलिसी है, ये इशू है। अभी तक एंड नहीं हुआ। यस मैम। यस और मैम आपको पता है कि इसमें बहुत सारा बहस हुआ था कि इसको एंड अभी तक ये एंड नहीं हुआ है। आपको पता होगा तो यू टेक आउट अ डिटेल टू एंड द रिजर्वेशन, हाउ मच स्ट्रगल हैज बीन डन एंड व्हाट वाज द impact was this ending of the reservation, isn't it? So don't go into it because it is an unending issue, and for this we are giving the equal opportunity to everyone. Equality, initially what happened, the reservation was provided for the SC/ST only, but later on the OBCs were also included, and now the other minorities are also demanding the reservation as well. In such a situation, the seats left for the majority would be the proportion to their population. तो अब minority वाले भी ले गए, OBCs वाले भी सीट ले गए, SC/ST ले गए, तो जो बहुत हमारा जो मेजॉरिटी का जो पॉपुलेशन है उसमें हमारे लिए जो सीट बच जाता है मेजॉरिटी के लिए, वो बहुत कम बच जाता है। Isn't it? Yes, ma'am. So the seats for the majority is very less, and it's a matter of concern for everyone. Now what happened? This has been a lot of discussion and against the reservation. Many discussion has been done in the parliament, in public, in movies, and many of the sphere of the life we can say हमने society में हर जगह पे हमने इस पे reservation पे बहस हुई है, but the discrimination and the suffering still continues in many parts of the country, and let us take a look at some of the steps taken by the Indian government. Now let's see what happened. इस विषय पे क्योंकि मेजॉरिटी के लिए बहुत कम सीट बच जाते हैं, तो इस पे बहुत बार डिस्कशन हुआ है और अभी तक सॉल्यूशन नहीं हुआ है, और अभी तक हमारा कंटिन्यू चल रहा है रिजर्वेशन। इसको हम देखते हैं किस प्रकार हमारा और आगे चल रहा है। The Scheduled Caste and the Scheduled Tribes, that is the Prevention of Atrocities Act of 1989. The act prevents the offense of atrocities against the member of SC/ST, and it provides for the relief and the rehabilitation to the victims, special court for the trial for following the offenses and having been set up for the trial for the offenders and the punished them if provided proved to be guilty. इनके लिए अलग कोड भी बना दिया गया है, और इनकी जो सुनवाई होती है हमारे SC/ST की, उसको बहुत मद्देनजर रखा जाता है, ध्यान दिया जाता है, और उसकी चीजों को बहुत ही ध्यानपूर्वक देख करके उसके ऊपर जस्टिस किया जाता है। और कोई भी अगर उसके प्रूफ हो जाता है कि किसी ने उनके साथ में किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार किया है, तो उसके लिए सजा जो है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, आप इसको ध्यान देंगे। देखिए अब हम आप सोचोगे कि what we are doing in the society, what people are doing for this SC/ST and OBCs, कहाँ पे हमने इनके साथ में कुछ गलत किया हो, या कहीं पर भी जैसे ये गलत इनके साथ हो रहा हो। जैसे कुछ एग्जांपल मैं दूंगी, कल बताया नहीं था, कुछ टॉपिक्स थे जैसे बेगारी करवाना, माइंस पे, ढाबास पे, we are forcing the children below 14 years to work on the dhabas, to work on the mines, to work at the home, और हम उनसे काम करवा लेते हैं और उनका मेहनताना नहीं देते, उसको हम कहते हैं बेगारी। क्या कहते हैं उसको आप? क्या कहते हैं? मैम चाइल्ड लेबर बेगारी करवाना। Yes.
Shashank. Now, forcing a member of SC/ST to drink or eat any inedible or rotten thing. Are you forcing any of such people to eat rotten food? क्या आप अपना जो खाना खाते हो वही देते हो? जो भी ये भी SC/ST या कोई भी अगर आपके घर में हो या आसपास में या खराब जो हो जाता है वही दे देते कि नहीं ये तो यही खा सकते हैं? No, ma'am. अगर ऐसा करते हो तो No, ma'am. insulting or annoying the member of ST/ST. Are you annoying them? क्या आप उनको नाराज करते हो किसी भी तरह से? SC/ST और इन लोगों इस तरह की चीजों को भी रोकना होगा. No, ma'am. Equal being with all the No, ma'am. कभी कभी होता है कि अगर हम हमने कहीं पे घर देखा बनाना और वहाँ पे बहुत सारे हमारे फ्रेंड सर्कल के लोग भी आ रहे हैं, वहाँ हमने कहीं देखा कि एक SC/ST वाला भी है, तो क्या आप उसको फोर्सफुली वहाँ से जाने के लिए कहते हैं कि नहीं, यू लीव दिस लैंड, आपको ये जगह छोड़ना No, होगा, ma'am. क्योंकि आप हमारे साथ No, ma'am. ठीक है. No, ma'am. ऐसे ना कंपेलिंग टू डू बेगार और बॉन्डेड लेबर, जबरदस्ती काम करवाना अपने लिए और उसके लिए पैसा भी नहीं देना. खास करके विलेजेस वगैरह में होते हैं, शहर में भी होते होंगे घर कहीं कहीं. Yes, ma'am. Farmers, laborers को हम सारे काम करवा देते हैं बट मनी नहीं देते हैं. Forcing anyone not to vote or to vote for a particular candidate. What we do is this, most of the people what they do, they say this SC/ST people or OBC student, you have to vote the particular leader. आपको हम जिनको बोलेंगे उन्हीं को वोट करना है, ऐसा भी करते थे, आ रहे थे लोग. गांव के लोगों को बोला गया था कि भाई आप किसको वोट देने जा रहे हैं तो आपको इन्हीं लोगों को वोट देना है, आप इनको वोट नहीं दे सकते. तो इस तरह से ग्रुपिज्म बनता है, ये भी गलत है. मैम उनको टॉर्चर करके बोला जाता था कि उन्हीं को वोट दीजिए. On any woman belonging to SC/ST, you can't force any SC/ST woman to do any such illegal thing which is not good for the upliftment of our society. किसी भी तरह का उनके वुमेन्स के साथ भी आप ऐसा काम नहीं करा सकते हो जो वो नहीं चाहती. ठीक है. Causing destructions of building which is ordinarily used as a place of worship or human dwelling. आप ऐसा कोई भी उनका कोई बनाया हो, मंदिर बनाया हो और वहाँ पे ओबीसी लोग ज्यादा हो या SC/ST वाले ज्यादा हो या उनकी कोई मकाने बनी हुई हो और उसे आप नापसंद कर रहे हो तो आप उन्हें जबरदस्ती नहीं हटा सकते. पहले आप उनके लिए जगह बनाइए और हमारे गवर्नमेंट यही कर रहे हैं, पहले उनके लिए रहने का व्यवस्था बना देते हैं और फिर उसको वहां से हटाने का प्रयास करते हैं. जब अगर सरकार भी नहीं मैम इलेक्शन के समय उन लोग को अच्छा से कर दिया जाता है बट उसके बाद उन लोग को फिर से वैसे ही ट्रीट किया जाता है. हम देखते हैं कि सड़कों के किनारे और पुल के नीचे फ्लाईओवर, अंडर द फ्लाईओवर्स, नियर द रोड साइड, you can see near the Asiana Nagar, the road side, many people are forced to live there. Why they are forced to live? They are not forced to live, but they are compelled to live there. वो compel हो जाता है कि वो वहीं पर रहें. क्यों? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट को उनके लिए करना पड़ता है. पहले गवर्नमेंट उनको जगह बनाए. क्यों? कि वो भी तो देश के ही नागरिक है ना. They are the citizen of India. Then why they are facing the problem? If governments are having the scheme for them, they should help out them. So this is only the state policy. अगर आप किसी स्टेट में जाओगे और देखोगे कि अरे भाई यहाँ पर तो हमने तो झुग्गी झोपड़ी देखा ही नहीं, हमने स्लम्स को देखा ही नहीं, तो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट लोग उनके लिए काम करते हैं. तो उसी तरह से हर स्टेट को अपने स्टेट के लोगों के लिए काम करना होगा. The government of India has made all the effort to safeguard the dignity of all the section of the society and the employment of manual scavengers and constructions of dry latrines provision, and this act is known as the Act in 1993 was an important step in the direction, and this law prohibits the employment of manual scavengers and as well as the constructions of dry latrines. Sahai Karamchari filed a PIL, public interest litigation in 2003 to get the manual scavengers banned from the railways also, and it is violated their fundamental rights against exploitation and discrimination. This what happened. Have you seen वो मैला धोने वाले को आपने देखा है? सर पे जो मैला धोते हैं. और हमारे जो रेलवे जो ट्रेन्स होते हैं उसमें भी जो स्वीपर्स लोग काम करने, आप खुद चाहते हैं कि हमारा अगर कोई बड़े स्टेशन के ऊपर हमारे जो ट्रेन रख जाते हैं तो ट्रेन की सफाई होती है,
तो उसके जो कर्मचारी लोग हैं उन लोगों ने भी PIL करके ये डिमांड किया, दे हैव डिमांडेड दैट वी आर नॉट Yes, ma'am. वे इस प्रकार का काम अब नहीं करना चाहते, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने PIL किया है और इन चीजों से भी हटने के लिए सरकार के पास गवर्नमेंट, तो आप देखते होंगे ट्रेन में या सब जगह में मशीन्स के द्वारा काम होता है। Machines are doing the work. Now the days has gone when people were carrying the human waste Yes, on their sir. head. एक समय ऐसा था ना जो सर के ऊपर मैला ढो करके लोग चलते थे, Ma'am. जिसको सोसाइटी में कोई पर्टिकुलर नाम दिया गया है, SC होते थे, मैं बोलूंगी नहीं, ठीक है। तो वो चीजों को बैन कर दिया गया। और अभी रेलवे कर्मचारियों ने भी कहा है कि नहीं, हमने वो जो आते थे स्वीपर्स लोग करने के लिए रेलवे में, उनको भी उन्होंने भी PIL करके इन चीजों को बंद करवाया, ठीक है। और सारे चीज नाउ मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजर्स, व्हाट वी कॉल द मैनुअल स्कैवेंजर्स, हाथ से मैला उठाना। आप खुद सोचिए, एक इंसान दूसरे इंसान का मैला उठा सकता है, आप अपना मैला उठा सकते हो क्या? आप अपना जो भी आप टॉयलेटरीज में जाते हो तो क्या आप अपना टॉयलेटरीज धोते हो? डू यू वॉश योर लैट्रिन्स? नो। Don't wash your latrines. Then who will wash? You are going to hire the person. पड़ोस से बुला के लेकर आओगे? गांधी जी ने तो यही किया था ना, उन्होंने अपने लैट्रिन्स तो धोए थे, बगल के भी सारे पड़ोसियों के भी लैट्रिन्स धो दिए, तो उनकी वाइफ के साथ उनका बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये हमारा 93 में ही इसको बैन कर दिया गया। अब मशीन से धोइए या खुद से करिए, ये सारी चीजें आ गई। मैनुअल स्कैवेंजर इज बैन नाउ। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, wait, it is to be, okay. So this scheme was introduced in January 2007 with the objective to rehabilitate the remaining manual scavengers and their dependent alternative occupation. Other occupation should begin. अब वो जो जीवन भर मैला धोते आ रहे थे, जो जीवन भर अपने सर के ऊपर लैट्रिन्स लेकर के जा रहे थे, उनको दूसरा जॉब आप क्या दोगे? Government has some plan for them or not? Yes, ma'am. उनके लिए भी बहुत सारे plan निकले। जैसे उनको किसी इंडस्ट्री में वर्क के लिए, मैम हर जगह उन लोग के लिए 50% रहते थे। After the enactment of provision of employment as a manual scavenger and their rehabilitation of Act of 2013, SRMS was revised, isn't it? SRMS, इसका full form बताओगे क्या है? SRMS, Ma'am, scheme for rehabilitation of manual scavengers. very good. स्वच्छ भारत अभियान, हर्षवर्धन, शशांक, Swachh Bharat Abhiyan was launched on October 2, 2014 to have a clean India by October 2 and 2019, and this national mission target to achieve the following. Swachh Bharat Abhiyan किसने किया था शुरुआत बताइए? 2 अक्टूबर 2014। नरेंद्र मोदी। Very good. Do it like this. नरेंद्र मोदी। ऐसे करिए, थम्स अप दिखाइए सारे बच्चे, ऐसे मेरे सारे बच्चे। तो स्वच्छ भारत अभियान was started by Narendra Modi on October 2, 2014. So are we succeeded in this 2014?
अभी इसको सक्सेस किया हमने, क्या बताइए? Yes, ma'am. What is that? बहुत हद तक मैम मिल कुछ चुका कुछ जगहों पर हाँ, मैम कुछ कुछ है। जगह मैम पर नहीं भी होता कहीं अभी। कहीं मिला है, कहीं कहीं नहीं जगहों पर मिला है। सक्सेस हुआ और कहीं पर नहीं। ये पटना में तो जैसे कि एकदम नहीं विजय है। तरफ से मैम। सुनिए, मैम बिहार में बहुत स्वच्छ कम भारत मिला है। हम पटना में एकदम नहीं है। Okay, stop now. This national mission target to achieve the following. इसका मकसद क्या था पहले? To construct toilet. Second, to eradicate the manual scavengers. Third, to change people attitude to sanitation and create awareness. लोगों के बीच में अवेयरनेस लाना। हमने स्कूल में बच्चों ने भी किया था ना सफाई का काम, सड़कों के किनारे पेपर उठाए थे हमने, याद है? याद है तो ऐसे करिए, ऐसे करिए, याद यस है? मैम रैली। यस मैम रैली। तो याद नहीं? आप लोगों ने हम सब लोग किए थे है। सफाई? हाँ याद। यस To the goal of Swachh Bharat Abhiyan mission included the elimination of open defecations and conservation of the incendiary toilet to flush toilet and eradicating the manual scavengers and municipal solid waste management. देखिए मैनेजमेंट मैंने बहुत पहले कहा कि देयर इज एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जो हमारे इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं मगर फॉरेन में बड़ा पॉपुलर है और वहां पर बड़ा सफाई का कभी कोई इशू नहीं हो पाता इस तरह से। तो हमारे इंडिया में तो अब ये नया हमारा आ रहा है MSWM। व्हाट डज इट मीन? MSWM बताइए क्या है? म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। यस मैम। Management. Please get the detail about MSWM and tell me. The national campaign led by the government of India aims to make the streets and infrastructure clean by October 2, 2019. 2014 में शुरू हुआ था अक्टूबर 2 को और 2019 में हमने कहा था कि हम स्वच्छ भारत अभियान को कंप्लीट कर देंगे। क्या अचीवमेंट हुआ? मैम कुछ कुछ मैम इधर तो एकदम नहीं होता। मॉडरेटली लगभग लगभग कई जगह पे टॉयलेट्स बनाए गए। 2019 में महात्मा गांधी जी का, सुनिए, महात्मा गांधी जी का 150 वर्ष पूरा हो गया था। उनका जन्म का 150 वर्ष पूरे हो गए हमारे महात्मा गांधी जी का। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी हैज बीन टेकन एज अ टारगेट for the Swachh Bharat Abhiyan in 2019, October 2019, and you have to go into it that whether we have achieved the goal or not. Swachh Bharat mission can only be made successful if the manual scavengers in the state is completely eliminated and replaced with the modern toilets. Have you seen the modern toilets in your state? not yet. Rehabilitation of those dependent on scavenger has to be planned and simultaneously through skill development programs so that they get stably and rehabilitated. And moreover, the Swachh Bharat Abhiyan will be succeeded only when each and every Indian becomes responsible about creating and managing waste and not littering public places. अगर आप अपने वेस्ट को आज ही पता करिए। टुडे आई एम गिविंग यू वन स्मॉल होमवर्क। द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ योर होम दैट इज कॉल्ड द वेजिटेबल वेस्ट, द मैनुअल वेस्ट एंड द अदर वेस्ट, इसको कहाँ डालते हैं पता कर। जो सही होगा वही बोलना। ये नहीं है कि ग्रीन डस्टबिन, green dustbin. Dustbin. You have to point out it. Okay. Program launched by the government of India for the upliftment of the weaker section. Many programs are there. You know, all of you are here. Yes ma'am. Yes ma'am. प्रधानमंत्री आवास योजना, वीकर सेक्शन। Yes ma'am. प्रधानमंत्री जनधन योजना,
स्टैंड अप इंडिया स्कीम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इतने सारे बनाए गए सेक्शन के लिए। क्या क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री इंडिया स्कीम, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, कन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा सुरक्षा बीमा योजना, PMSBY। बिफोर एंडिंग द चैप्टर आई वांट टू से फ्रॉम ये जितने भी पीकर सेक्शन के लिए बनाए गए, डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट? हाँ, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? SSY। अंकित राय, मैं कल पूछूंगी आपसे व्हाट डू यू मीन बाय सुकन्या समृद्धि योजना SSY। देन मानवी आई एम गोइंग टू आस्क प्रधानमंत्री PMSBY के बारे में बताया। और ये हमें शशांक बताएंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, हर्षवर्धन अबाउट द प्रधानमंत्री आवास योजना, एंड पावनी विल टेल मी द प्रधानमंत्री जनधन योजना, साहिल रजा विल टेल मी स्टैंड अप इंडिया स्कीम। साहिल रजा, Yes, ma'am. Yes, I ma'am. can't see you. I don't know whether I am blind or you are not visible. मैम अभी ट्राई कर सकते हैं मैम प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में कुछ बोलने का। कब? अभी? यस मैम। ओके, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, साहिल रजा। मैम मेरा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बोलना है। यस मैम। ठीक है, जिसको जो बोलना है वो बोलेगा कि मैडम मैंने इसके तैयार किया और आप बोलोगे, मैं किसी को बोलने यस मैम, ओके मैम। ओके क्या मैम। मना किया है क्या? हर्षवर्धन तो मेरा हमेशा किसी भी टॉपिक को लेकर के तैयार हो जाता है कि मैडम मैं इसके बोलूंगा। तो ये इतने सारे स्कीम्स बनाए हुए हमने बीकर सेक्शंस के लिए, ठीक है, और सबका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए।